રાજકોટ અમદાવાદ હાઈવે પર જય ગણેશ ઓટોમોબાઈલ્સનું નવું સોપાન અશોક લેલેન્ડનો ભવ્ય શુભારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। ખોડલધામ ટ્રસ્ટના ચેરમેન નરેશ પટેલ અને અશોક લેલેન્ડના નેશનલ હેડ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જય ગણેશ ઓટોમોબાઈલ્સના એમડીએ રજનીકાંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે અશોક લેલેન્ડની ડીલરશીપ વ્યૂહાત્મક સ્થિતિ છે જે બ્રાન્ડને વિસ્તારમાં એક પ્રચંડ શક્તિ મળે। અશોક લેલેન્ડે ઉત્પાદનોની દ્રષ્ટિ અને સ્પષ્ટ બંને રીતે વિકાસ કર્યો છે। જય ગણેશ ગ્રુપ એમના 51ના સ્થાપના દિવસે અશોક લેલેન્ડ હેવી એન્ડ કમર્શિયલ વ્હીકલની ડીલરશીપનું ઓપનિંગ કરવા જઈ રહ્યું છે। અશોક લેલેન્ડ એક ભારતની અગ્રણી ઓટોમોબાઈલ્સ કમર્શિયલ વ્હીકલની કંપની છે, જેમાં ગુજરાતના 58મો ટચ પોઈન્ટ આજે રાજકોટની અંદર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં કસ્ટમર્સને હેવી કમર્શિયલ વ્હીકલમાં 9 ટનથી લઈ અને 55 સુધીના ટ્રક અને જે એરપોર્ટ ઉપર બધી ચાલતી હોય છે એ બધી બસોનું ત્યાં નિર્માણ કરે છે। અને આજે અમે લગભગ આ ડીલરશીપનું ઓપનિંગ કરતાં ખૂબ લાગણી અને ગર્વ અનુભવીએ છીએ। અમે અહીંયા પૂરેપૂરું સેટઅપની અંદર કમર્શિયલ વ્હીકલ્સના ટ્રકનું સેલિંગ અને સાથે સાથે અમે અહીંયા સર્વિસ માટેની વિશાળ સુવિધા કસ્ટમર્સ માટે પૂરી પાડેલ છે। અમે કસ્ટમર્સને સુવિધા પૂરી પાડવા માટે કટિબદ્ધ છીએ। થેન્ક યુ। પ્રથમ તો રાજુભાઈ અને આખી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। એ સૌરાષ્ટ્રમાં કદાચ સૌથી મોટો લેલેન્ડનો ઓટોમોબાઈલ શોરૂમ લાવી રહ્યા છે અને જેટલી માહિતી હજી તો ઉદ્ઘાટન થયું નથી, પણ જેટલી માહિતી મને આપી રાજુભાઈએ એમાં 5 ટનથી લઈને 55 ટન સુધીના ગુડ્સ વ્હીકલ સાથે સાથે બધી ટાઈપની બસ, એટલે કે પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સાથે ઇલેક્ટ્રિક, આ બધું જે સૌરાષ્ટ્રને આજે સેવા મળવા જઈ રહી છે તે બદલ ફરીથી લેલેન્ડ કંપની અને રાજુભાઈના શોરૂમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું। આટલી મોટી વ્હીકલ્સ આવવાથી સૌરાષ્ટ્રને યાતાયાતમાં ખૂબ મોટો ફાયદો થશે। એનો તો ફાયદો થશે જ, પણ જે લેલેન્ડે પહેલ ઇલેક્ટ્રિકની કરેલી છે એના હિસાબે એન્વાયરમેન્ટને પણ ખૂબ મોટો ફાયદો થશે। તો આ તકે આ સોપાનને ખૂબ સક્સેસ મળે, શુભ સફળતા મળે એવી મા ખોડલને પ્રાર્થના કરું છું। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। हमारी टीम कह रही थी कि आपको हम लोग सेल्स सो रजनीकांत पटेल जी नमस्ते। रजू भाई, राजू भाई, आपके परिवार सबको सबसे पहले बधाई। अशोक लेलैंड के फैमिली में आपका स्वागत है। आप अशोक लेलैंड की फैमिली में आ रहे हैं और इसके साथ अशोक लेलैंड फैमिली और बढ़ता है। खाली आप लोग के स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अशोक लेलैंड का 1045th वर्कशॉप है पूरे इंडिया में। हमारा जो वेस्ट जोन है, ये वेस्ट जोन का 169th वर्कशॉप है और गुजरात का 69th वर्कशॉप है। सो अशोक लेलैंड का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के द्वारा अपने परिवार को बढ़ाएं। मैं एक्चुअली बोलूँगा क्या, जिस तरह से यहाँ पे आज ये पूरे सक्सेस पार्टी में इतने लोग जमा हुए हैं, I think that itself talks about the influence of this entire family and the partners that we have focused on this business. और अशोक लेलैंड मैं क्या बताऊँ, अशोक लेलैंड इंडिया में 75 साल से शुरू हुआ है। ये अशोक लेलैंड का 76वां साल चल रहा है। That is the presence of अशोक लेलैंड in the country and अशोक लेलैंड एक ही कारण से इंडिया में जाना जाता है कि टेक्नोलॉजी में वो हमेशा से आगे रहा है। जितने भी नई नई टेक्नोलॉजी भारत में आई हैं उसमें अशोक लेलैंड हमेशा से अग्रसर रहा है उन टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए और इंडिया के कस्टमर्स के सामने उसको प्रस्तुत करने के लिए, और न ही नई टेक्नोलॉजी को जो का उपयोग कैसे प्रस्तुत किया जाए। अशोक लेलैंड ने हमेशा से ये ध्यान रखा है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमारे देश के, हमारे जो ग्राहक है, हमारे देश की जो अप्रोप्रिएट जो इकोसिस्टम है उसके लिए ये टेक्नोलॉजी किस तरह से सूटेबल बैठे, उसको उस तरह से हमने डेवलप करके इंडिया में उसको प्रेजेंट किया। सो ये जो डीलरशिप का जो ये पूरा बिजनेस है, जैसा नरेश भाई ने बताया और आपने बताया कि ये किसी अकेले का काम नहीं है। तो भाई ये पूरी एक टीम जब एक साथ जुड़ती है ना, उस वक्त जाके ये डीलरशिप का काम होता है। इस डीलरशिप से खाली गाड़ियाँ ही नहीं बिकेंगी, खाली सर्विसेज ही नहीं बिकेंगी,
जैसा आपने बताया कि हर एक ट्रक के पीछे एक 5-6 परिवार जुड़े होते हैं हर एक ट्रक के साथ। और आप लोग जितने भी ट्रक का बिजनेस करेंगे, जितने भी ट्रक्स यहाँ पे सर्विसेज के लिए आएंगे, उतने सारे परिवार इम्पैक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज रहते हैं, आप जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, उन सभी का जीवन यहाँ पे जुड़ा रहेगा। आपको बताते हुए मुझे गर्व होता है कि अशोक लेलैंड के साथ आज ऐसे रिलेशन भी हैं जो शुरुआत से अभी भी जुड़े हुए हैं। 76 ईयर में अशोक लेलैंड के साथ है। बहुत सारे ऐसे हैं जो 50 साल के हैं, 30 साल के हैं। ये बिजनेस और ये रिलेशनशिप ऐसा ही है कि जो सालों साल नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ही चलता रहता है। और जब मैं फैमिलीज की कनेक्शन की बात कर रहा हूँ इस बिजनेस की, मैं तो जनरेशन की कनेक्शन की बात कर रहा हूँ। हमारे जनरेशन, कस्टमर्स के जनरेशन, तो ये जो बिजनेस है इसमें लोगों की लाइवलीहुड जुड़ी हुई है कंप्लीटली। जब देश की इकोनॉमी की बात आती है तो सबसे पहले देश की इकोनॉमी को ये फैक्टर है जिसको अफेक्ट करता है। अगर हमारे देश की जीडीपी ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो हम कमर्शियल व्हीकल के सेल्स का मापदंड देखते हैं कि वो ऊपर है या नीचे है। उसकी मापदंड एक स्टैटिस्टिक होती है जो हमें बताती है कि देश की जीडीपी और क्या स्थिति है। आप सबको पता है कि आज के दिन में जो ट्रक्स है सब BS6 ट्रक्स आते हैं। जितने भी कमर्शियल ट्रक्स और बसेस हैं सबको BS6 कहा जाता है, खास भी वैसे ही है। तो जितने भी BS6 ट्रक्स और गाड़ियाँ हैं इन सब की यही ज़रूरत पड़ती है कि वो वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि उनका जो रिपेयर और मेंटेनेंस है वो बाहर नहीं हो पाता है। इतने सारे स्किल्ड मैकेनिक्स बाहर अवेलेबल नहीं है। आज के दिन में जो गाड़ी के रिपेयर के लिए मैकेनिक्स ही नहीं चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियंस भी चाहिए, क्योंकि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसलिए जो वर्कशॉप पे डिपेंडेंस है जितने भी ट्रक्स का, जितनी बसेस का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वर्कशॉप में गाड़ियों की फ्लो काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो आई एम श्योर ये जो वर्कशॉप है हमारे यहाँ पे जितने भी कस्टमर भी अवेलेबल हैं इस वर्कशॉप का पूरा फायदा उठाएंगे और अपने ट्रक्स और बसेस जो है इस वर्कशॉप में भेजेंगे, जहाँ पे स्किल्ड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस अवेलेबल रहेंगे। अशोक लेलैंड के जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल रहेंगे। हमारे जो वर्कशॉप्स हैं वो 24/7 काम करते हैं। हमारे पास सर्विस डिलीवरी करने के लिए बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। अगर आपकी गाड़ी में वर्कशॉप में आती है तो उसको अटेंड करने के लिए अलग तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। आपके अगर गाड़ियाँ एल्टीट्यूड लोड के साथ अगर ब्रेक डाउन होती है उसको अटेंशन देने के लिए भी हमारे पास टीम्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग हर तरह से तैयार हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उसको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकें। जब भी आपकी गाड़ी कहीं भी हो, आपकी गाड़ी वर्कशॉप में आए या आपकी गाड़ी रास्ते में रहे,